وہاں پہ صرف ڈپٹی کمشنر نہیں ہے، اس بورڈ کے اندر آپ کے نمبردار ہیں، آپ کے سرکردگان ہیں، آپ کے منتخب نمائندہ ہے، اور آپ کے تقریباً 10 سے زائد ممبران اس بورڈ کا حصہ ہے۔ اگر وہ 10 ممبران یک طرفہ ہو جائیں تو ڈپٹی کمشنر کی تو کوئی اکیلا ووٹ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کا پہلے الاٹمنٹ، آپ کا پہلے انتقالات، منسوخی، کسی کو دینا، ان تمام کے اختیارات کس کے پاس تھے؟ ڈپٹی کمشنر کے پاس تھے۔ کس کے پاس تھے؟ چیف سیکرٹری کے پاس تھے۔ ان تمام اختیارات کو آپ کے اپنے منتخب نمائندوں کے ہاتھوں دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس بل کو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 18ویں ترمیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد کوئی خالصہ سرکار کے نام پہ آپ کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی کلکٹر، کوئی اسسٹنٹ کمشنر کسی جگہ کھڑا نہیں ہوگا کہ یہ میری سرکار کی زمین ہے کہہ کر۔ کوئی کریڈٹ نہیں ہے ان کو، ایک لفظ ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ایک نقطہ کہیں کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں فورم پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، تو خیر میں کرنا وہ اچھی بات نہیں ہے، ہم فورم پہ بیٹھے تھے۔ یہ ہماری ریکویسٹ پر پورے پاکستان کے اندر 18 پروجیکٹ ہیں، 18 پروجیکٹ، ٹھیک ہے جی، 18 میں سے 3 نکالو تو 15 پروجیکٹ پورے پاکستان کشمیر پلس تھے۔ یہ ہماری ریکویسٹ تھی، ٹھیک ہے جی۔ میں آج کے اس فورم کے وساطت سے سابق سیکرٹری فیڈرل ایجوکیشن وانی صاحب کو بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری ڈیمانڈ کو سپورٹ کی، اور گلگت بلتستان کے اندر تینوں ریجن کے اندر ایک دانش سکول کا جو ہے نا ہمیں اپروول مل گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ سر یہ مسلم لیگ نون کی جو صدر سلطان علی خان صاحب نے کہا کہ یہ پروجیکٹ شکر میں تھا، جب میں اور جنرل سیکرٹری رضا الحق مدینی نے ریزائن دیا تو یہ دانشے میں لائے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ شگر میں واقع میں تھا، کیونکہ یہ فورم پہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا۔ کوئی ایسی اضلاع میں دانش سکول نہیں بنیں گے جہاں پہ کیڈٹ کالج آلریڈی موجود ہو۔ پھر لٹیگیشن ہو گئی، سائٹ سلیکشن نہیں ہوئے، زمین نہیں ملنے کے بعد بہت سارے اور اضلاع کے اندر نام آئے، تو انہوں نے بھی ہمیں اپروچ کیا۔ کرنے کے بعد ہم نے کہا یہ دور دراز اور پسماندہ ضلع ہے، اس ضلع کے اندر بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس ضلع کے اندر اس پروجیکٹ کو جانا چاہیے، تو ہم نے پھر اس کی ریکمنڈیشن دی، پھر یہاں آ کے یہ کام شروع انشاءاللہ ہوں گے۔ شہزاد آغا صاحب، اسی دانش سکول کو لے کر ہم نے دیکھا کہ جو فیزیبلٹی رپورٹ وہی گروپ تیار کر رہا ہے جس کے ذمہ اس کام کو کرنے کی ذمہ داری ہے، یعنی ٹھیکیدار اس کی فیزیبلٹی بھی بنا رہی ہے، تو کیا ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ آپ کیسے وہی ٹھیکیدار آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیسے کہہ؟ فیزیبلٹی کا جو مین کنٹریکٹ ہے اسی فرم کے پاس ہے سر، جس کو لکھا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو کنسلٹینسی الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، ہاں ایک فرم کے اندر ایک فرم ہوتا ہے، اس فرم کے اندر الگ ایک سبجیکٹ کنسلٹینسی کی شاید ان کے پاس ہو، الگ سے کوئی گروپ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں، ان کا آپس میں دوستی ہو سکتی ہے لیکن ایک فرم کا نہیں ہو سکتا۔ یہ فرم جو ہے نا وہ لوکل کا ہے جس کو ٹینڈر ہوا ہے، اور جو کنسلٹینسی ہے وہ لوکل فرم نہیں ہے۔ جس وقت میں نے خود انٹرویو کیا ٹھیکیدار الطاف جو جس کو بنا رہے ہیں، میں نے کہا کہ جس جگہ پہ پہلے سلیکٹ کی گئی تھی، صرف ٹھیکیدار الطاف نہیں ہے، اس میں 4 لوگ اور ہیں۔ انہوں نے خود آن دی کیمرہ آن دی ریکارڈ یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جو جگہ پہلے سلیکٹ کی گئی تھی وہ ریجیکٹ کی گئی ہے، تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو کون سی جگہ؟ جہاں پہ پہلے سے ڈویژنل پبلک اسکول کے لیے زمین سلیکٹ کیا تھا سر، وہ جگہ ہے سر۔ دیکھیں اس جگہ کو اس جگہ کو اس لیے نان فیزیبل قرار دیا کیونکہ اس وقت آپ کو میں یہ بھی خوشخبری دوں، آپ کے جو کیا کہتے ہیں اس پبلک سکول نے اسی جگہ دوبارہ تعمیر ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سکول نے دوبارہ اسی جگہ تعمیر ہونا ہے، ڈویژنل سکول جو ہے نا پبلک سکول، اس جگہ تعمیر ہوں گے۔ کیسے تعمیر ہوں گے سر؟ جی ڈویژنل پبلک سکول کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم لگے ہوئے ہیں۔ دانش سکول کا تو پتہ ہی نہیں تھا، خیر وفاق کی مہربانی اور ہمارا کیبنٹ کی مہربانی سے اچھا ایک سکول بلتستان کو ملا، بلتستان کو ملنے کے بعد شگر کو ملا، شگر میں ٹینڈر ہو گیا، وہی فارم کو ملا، ٹینڈر ہونے کے بعد شگر والوں نے زمین نہیں دیا، زمین نہیں دینے کے بعد وہ لوگ یہاں آیا، اس وقت اس ٹھیکیدار کے پاس
अच्छा जनाब मन हमारे सलिंग का प्रोजेक्ट का अप्रूवल उस ठेकेदार के पास नहीं था जिस वक्त ये आफ्ताब यहाँ पर आया। डीसी साहब वगैरह सब लेकर आने के बाद उन्होंने साइट पर आया तो मैंने कहा जनाब हमारे लिए डिविजनल पब्लिक स्कूल के लिए 1 करोड़ रुपए हुकूमत ने खर्च किया है, ये जगह हम आपको दे रहे हैं, आप मेहरबानी करके दानिश स्कूल यहाँ पर बने। उसने कहा जनाब यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा है, इसमें हमारे लिए खर्चा ज़्यादा है। फिर मैंने कहा कि अब वो जा रहा था, मैंने कहा हमारे पास मस्जिद 2 जगह और है मुतबादिल, मगर ये जगह स्कूल हमने जाने देना नहीं है। उसने कहा कहाँ पर है, तो मैंने कहा एक स्टेडियम के नज़दीक। पूरा फिरा वो लोग सब डीसी बीसी एसी में। उसके बाद आने के बाद पुल के नज़दीक वो जगह देखने के बाद उन्होंने कहा ये जगह अच्छा हम यहाँ पर सिलेक्ट, उस जगह को जहाँ पर डिविजनल पब्लिक स्कूल के लिए 1 करोड़ रुपया खर्चा होकर चारदीवारी लगा कर है वो अनफिजिबल नहीं किया है। उन्होंने कहा यहाँ पर कास्ट ज़्यादा है। मैंने कहा चलो ठीक, ये हमारा किस्मत अच्छा था, अभी अल्लाह के शुक्र है डिविजनल पब्लिक ये दानिश स्कूल हमारे पुल के नज़दीक बन रहा है और डिविजनल पब्लिक स्कूल उस जगह में बन रहा है, क्योंकि ये कोर्ट में वकला साहिबा ने अच्छा स्टे किया हुआ है कि जिस दिन निकलेगा ये हमारे हक में डिग्री हो जाएगा। अच्छा वो स्कूल पे हमारे वहाँ पर ये जगह अनफिजिबल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा यहाँ पर कास्ट ज़्यादा है, लिहाजा और कोई जगह हमें दिखाओ, हमने जगह दिखाया उन्होंने। अच्छा वो जाफर साहब आपको पता है कि जिस ये जगह पहले डिविजनल पब्लिक स्कूल के लिए ही मुख्तस की ये बिल्कुल क्या था जी क्या उसको कह रहे हैं कि उस एजुकेशन के नहीं इसको अनफिजिबल कहा था, सिफारिश सुने या आप अनफिजिबल की बात ना करें ना। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कोई जगह है। अभी वो चीफ इंजीनियर जो है साइड के लेवलिंग का मसला था और लेवलिंग का इशू था, ये लिटिगेशन के अंदर थी, एजुकेशन का वो मेन इशू लिटिगेशन था। एजुकेशन का था। वो चीफ इंजीनियर का नाम था जी एजुकेशन का शफा। उसने कहा यार और भी जगह दिखाओ, हमने जगह दिखाया। उसने कहा हम यहाँ पर बनाते हैं। जनाब देखें ना अनफिजिबल की मैं आपको बात करता हूँ, हमारा सस्पेंशन ब्रिज 3 करोड़ रुपए में मैंने बनवाया, RCC ब्रिज 44 करोड़ रुपए में बना है। अगर ये सब ले गया तो ले जाए ना, उन जगहों के लिए सस्पेंड ब्रिज के लिए भी फिजिबल, 44 करोड़ रुपए का RCC ब्रिज के लिए भी वो जगह फिजिबल। अगर दरिया गरक हो जाए, आसमान से अजाब आ गया तो अच्छा जनाब ये सब जाएगा, वरना अल्लाह के शुक्र है आज तक कोई ऐसी वो नहीं है, तमाम जगह फिजिबल है। अभी दानिश स्कूल भी अभी हफ्ते के अंदर अभी नॉमिनेशन चेंज हो गया सर, अप्रूव हो के सलिंग के नाम पर हो गया। अभी 2-3 दिन के अंदर ठेकेदार जो है अपना अमला लेकर इधर आ रहे हैं, काम शुरू कर रहा है। और ये जब कोर्ट में वकीला जाएगा तो इंशाल्लाह पहले पेशी में जो है मैंने रिट किया हुआ है चीफ कोर्ट में, वो हमारे हक में फैसला हो जाए। वो मर के भी करेगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए उस पर खर्चा हुआ है। हमने 200 कनाल इस ज़माने में शाजी 200 कनाल ज़मीन मुफ्त देना आसान काम है। उधर भी तो अभी शिगर में इसीलिए गया, उन्होंने कहा ज़मीन की कीमत बढ़ गया है, हम बगैर पैसे के अच्छा ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा बहुत अच्छा हो गया, ये दोनों बन रहा है। ये नासमझी में शायद बहुत सारे लोग कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग इसके ऊपर सियासत करना चाहते हैं, ठीक है जी। और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे पार्टीज़ का इशू ये है कि इसमें अमजद एडवोकेट इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है। अब उसके लिए हमारे पास कोई हल नहीं है, ठीक है जी। बिल आपके पास शायद मौजूद होंगे, आप स्टडी करें। हमने बहुत सारों को चैलेंज किया है, बिल के एक एक शिक पढ़ने के बाद हमें बताएं कि उस शिक के अंदर इस कौम के साथ फलान पॉइंट पे जाती है, हम उसका उजाला करने के लिए तैयार हैं। दूसरी अहम बात यह है, ये आपके लिए हक देने के लिए, आपको मिल्कियत देने के लिए ये पहली सीढ़ी है। देखो पाकिस्तान के आइन के अंदर 26वीं तरमीम आ गई, तरमीम लाए, किसी कोई इशू है? किसी फोरम को या किसी अदारे को या किसी शख्स को या किसी पार्टी को असेंबली में आने के बाद आप उस शिक के ऊपर जहां आप ज़्यादती समझ रहे हैं, आप उसके ऊपर तरमीम लाए, ये हक आपको हासिल है। लेकिन इंशाअल्लाह हम किसी को सियासी नज़र होने हम इसके ऊपर नहीं देंगे। ये कौमी एक काज है, इस काज के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी तवील एक जिद्दोजहद रही है। आज अल्लाह का करम है, आवाम को मिल्कियत दी है। जहाँ पे आपका खालिसा सरकार नाम लिखा हुआ होता है ज़मीन का, वहाँ पे आपका नाम आ रहा है। जहाँ पे बैरून लैंड लिखा हुआ होता है, वहाँ पे आपका नाम आ रहा है। जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मालिक थे, वहाँ पे आप मालिक बन गए। तो आपको, पब्लिक को, आवाम को क्या चाहिए? परसों इसी हवाले से हमने डिप्टी कमिश्नर को, चेयरमैन और मेंबरान असेंबली को उसके मादाद जो है एक कमेटी की नोटिफिकेशन भी देखा।
अच्छा, ये भी मैं आपको क्लियर करूं, देखो मैं मेंबर हूं, मैं उसको चेयर नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी दो वजूहत है। एक वजह यह है, एक तो इंतज़ामी उमूर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका सरबराह है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन उसने करना है। डॉक्यूमेंटेशन करने के इख्तियारात या डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास मौजूद नहीं है, ठीक है जी। अब उस वो कमेटी नहीं है, बल्कि वो उसको हमने बोर्ड का नाम दिया हुआ है। उसके अंदर मिसाल के तौर पर कोई लिटिगेशन आए, मेरा और जाफर साहब का, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मैंने अगर मैं चेयरमैन रहूं तो ये ज्यादती नहीं होगी मैं अपने बंदे के फेवर करूं। लेकिन वहाँ पे सिर्फ डिप्टी कमिश्नर नहीं है, उस बोर्ड के अंदर आपके नंबरदार हैं, आपके सरकर्दगान हैं, आपके मुंतखब नुमाइंदा है, और आपके तकरीबन 10 से ज़ायद मेंबरान उस बोर्ड का हिस्सा है। उस मौजूद के 10 से ज़्यादा, ठीक है जी, उस बोर्ड का हिस्सा है। अगर वो 10 मेंबरान एक तरफा हो जाएं तो डिप्टी कमिश्नर की तो कोई अकेला वोट तो नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार रखता है, नीचे असल पावरफुल जो फोरम है वो उसको कहते हैं विलेज वेरिफिकेशन कमेटी, जो कि मैंने और आपने मुंतखब करना है, गांव के लोगों ने चुनाव करना है उन मेंबरान की। अब उसके पास ये इख्तियार है कि इब्राहिम साहब को इस ज़मीन के ऊपर हक रखता है नहीं रखता है, ये वो कमेटी बाख्तियार है। उस कमेटी के रिकमेंडेशन डिप्टी कमिश्नर की जो चेयर करता है उस बोर्ड में जाता है, वो बोर्ड अपने रिकमेंडेशन फिर सूबाई सतह पर आगे भेजता है। आखिरकार कहाँ जाता है, ये एंडिंग जो फैसला होता है वो चीफ मिनिस्टर के पास जाता है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब नुमाइंदा होता है। आपका पहले अलाटमेंट, आपका पहले इंतकालात, मनसूखी, किसी को देना, इन तमाम के इख्तियार किसके पास थे? डिप्टी कमिश्नर के पास थे। किसके पास थे? चीफ सेक्रेटरी के पास थे। उन तमाम इख्तियारात को आपके अपने मुंतखब नुमाइंदों के हाथों दिया है। तो मैं समझता हूँ इस बिल को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए 18वीं तरमीम की हैसियत रखता है। ठीक है जी, 18वीं तरमीम से हम तजबीह देते हैं। ये इसलिए आप निचली सतह पे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आपने मिल्कियत दी। मिसाल मैं आपकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। खपुल के अंदर मुझे आज भी याद थे 2 जगहों के ऊपर इंतहाई फसादात होते रहे खालिसा के नाम पे, खालिसा सरकार के नाम पे यहाँ पे फसाद होता रहा। आज अल्लाह का करम है, इंशाअल्लाह ताला इसकी नोटिफिकेशन होने के बाद, इसके ऊपर अमल दरामद होने के बाद कोई खालिसा सरकार के नाम पे आपको तंग नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, कोई डिप्टी कमिश्नर, कोई कलेक्टर, कोई असिस्टेंट कमिश्नर किसी जगह खड़ा नहीं होगा कि ये मेरी सरकार की ज़मीन है कहकर। उसको ये ताकत, उसकी ये ताकत गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली ने, गिलगित बल्तिस्तान के इस फोरम ने इस कानून साजी के तहत ख़त्म कर दिया गया है। सर, जिस टाइम पे ये बिल असम्बली से मंजूर हुआ था, सेम उसी टाइम पे जो मादनियात के जो लीज का जो एक सिलसिला खोला था, ऑनलाइन लीज का जो एक नया सिलसिला खोला, और मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इसको अप्लाई कर सकते थे। और हमारी स्टडी के मुताबिक तकरीबन हमारे जो है गांचे की अगर हम बात कर ले तो 95% पहाड़ जो है लीज पे जा चुके हैं। और आप जिस ज़मीन को मेरी कह रहे हैं वो तो आपने किसी को किराए पे दिया है। देखें, एक बात ज़हन में रखें, लीज तो मखसूस मुद्दत के लिए है। लीज मीन्स मखसूस सालों के लिए, मखसूस टेन्योर के लिए, मुख्तलिफ घंटों के लिए लीज दिया जाता है। अब लीज की एक पॉलिसी आप सुने। लीज उस वक़्त इसको आसान बनाया, जो क्या नाम है, ऑनलाइन अप्लाई के लिए आसान इसलिए बनाया है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंटरेस्ट है, आपने अप्लाई करना है, ठीक है जी, कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ शराइत, उस शराइत पे अगर आप उतरता है तो आपको लीज मिलेंगे। लेकिन लीज उस वक़्त मिलेंगे जिस पहाड़ का मालिक मुतल्लिका गांव है, उसकी मिल्कियत उस मुतल्लिका गांव का है। जब तक उसकी एनओसी नहीं आता आपको कोई लीज नहीं देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर गरबुचों की लीज उस वक़्त मिलेंगे जिसकी मलकियत लोगों के पास ऑलरेडी, गरबुचों के लोगों के पास मौजूद है। उसकी एनओसी आएंगे तो आपको लीज होंगे। एनओसी किस बुनियाद पर दिया जाएगा सर? आपको, हाँ अब आ गया ना, एनओसी इस बुनियाद पे दी जाएगी। यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग हैं, एक इन्वेस्टर है, एक गवर्नमेंट है, तीसरा कम्युनिटी है। यहाँ शेयर डिफाइन होंगे। हम लीज के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम शेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे लोग माइनिंग के ऊपर या मिनरल के ऊपर काम कर रहे हैं। उससे आम लोगों को, आम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सेहत पर क्या असर है?
चेयरमैन साहब मार्बल का काम करता है, करोड़ों डेली बेस पे कमाता है, उसकी आपकी सेहत पे क्या असर है कोई? बताएं मुझे। इंडिविजुअली हर कोई कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, शिगर में कर रहा है, रोंदू में कर रहा है, इधर कर रहे होंगे, वो इंडिविजुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो कर रहा है, लेकिन उस कम्युनिटी को क्या फ़ायदा है? गिलगिस्तान हुकूमत ने वो पॉलिसी लाए कि ये सिर्फ आप अकेला नहीं खाएंगे, आप अकेला नहीं खाएंगे, आप कम्युनिटी को भी खिलाएंगे। यही सवाल था सर, एनओसी के लिए कोई जीबी का कोई बंदा जो ना होना लाजमी था। देखें, आज पंजाब के लोग डायरेक्टली अपने नाम पे कर रहे हैं। नहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, ऐसा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अप्लाई किया, ठीक है, पंजाब से भी अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, उसकी वेरिफिकेशन होती है, फिर मुतल्लिका आपका जो मैंने अभी भी कहा ना, मुतल्लिका गाँव से एनओसी आता है, उसकी टर्म्स कंडीशन तय होगी कम्युनिटी के साथ। मिसाल के तौर पर 1 टन पे उस कम्युनिटी को कितना शेयर जाए, वो टर्म्स कंडीशन कम्युनिटी तय करेगी, ठीक है। सर जब ये सारी बातें उस वक्त तक अब तक हमें तो हवाई बातें इस वजह से लगती है कि मिसाल के तौर पर आप गारबोचुन की बात करें, सलीम में बहुत सारी ज़मीन आप ऊपर जाते हुए आपने देखा कि राइट साइड पे बहुत सारे एरिए लीज के लिए जा चुके हैं। मैं सलीम का बाशिंदा हूँ, जाफ़र साहब सलीम के बाशिंदे हैं। जाफ़र साहब चूँकि पॉलिटिकल फिगर होने के नाते उनको अगर टर्म्स एंड कंडीशन का पता हो तो हो, लेकिन बीइंग अ सन ऑफ द सॉइल, बीइंग ऑफ द नेटिव विलेजर, मैं आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। हाँ देखें, टर्म्स कंडीशन कहाँ है? टर्म्स कंडीशन जहाँ से लीज आउट होनी है वहाँ लगा हुआ है, उस टर्म कंडीशन पे ही आपको लीज आउट होना है, ऐसे नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 3 कैटेगरी का बताया। एक इन्वेस्टर होंगे, ठीक है, जिसको लीज जाना है, एक इन्वेस्टर। दूसरा जीबी के गवर्नमेंट बैठा है, उसको भी ऐसा जाना चाहिए क्योंकि निज़ामी उमूर उसने चलाना है। तीसरा कम्युनिटी को शेयर जाना चाहिए। कम्युनिटी को कितना शेयर जाता है यही अब यही है, अब आ गया। अब तो मेरे ख्याल में 20% जो ना शेयर फिक्स है, लेकिन गांचे में 3-4 जगहों पे हमने देखा है कि वो मंथली बेस पे जो ना कोई ना कोई मतलब मंथली देखें अब ये इशू है यहाँ पे, अगर मैं और आप, सर मेरी स्टडी के मुताबिक 20% वहां से निकलने वाले माल की मिल्कियत का 20% जो ना, तो आप क्यों लेते हैं? आप क्यों लेते हैं? कम्युनिटी को कहने ले, ठीक है। आज मैं मिसाल देता हूँ, आज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, शिगर के अंदर जिसकी जरगादारी होगी, जरगा हो गया होने के बाद आज तकरीबन 65 लाख रुपए मिलता है उस विलेज को, ठीक है जी। 2 बंदे खा रहे थे, 2 बंदे, कौन था? एक पठान था, एक बल्ती था, 2 बंदे खा रहे थे, ठीक है जी। अब उसका शेयर मुख्तस हो गया, कम्युनिटी के साथ बैठा, जिस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने साइन की, उसका लीज हो गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 65 लाख रुपए जो है उस कम्युनिटी को जाता है। पब्लिक को उस चीज को रोकना चाहिए, लाजिमन पब्लिक को अपने हुकूक का दिफा करना चाहिए, लेकिन बीइंग ए पब्लिक मेंबर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आप जो ना, और बीइंग ए मेंबर ऑफ असेंबली, क्या आप लोगों को इन चीज़ों को इंश्योर नहीं करना चाहिए कि जो एक सरमाएदार के खिलाफ जब एक बंदा उठ के खड़ा होता है या एक मखसूस गरीब तबका उठ के खड़ा होता है, तो उसके ऊपर जो है 10 किस्म के इल्ज़ाम भी लगते हैं, वो किसी न किसी उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को इंश्योर क्यों नहीं करते? नहीं, किस नेज पे उस पे बात कर, किस जाविये पे आप बात सर, कर? जो सब जहाँ पे लीज पे देते हैं, तो जो परसेंटेज आपका लीज के जो एक लास्ट में जो फिक्स है, उसको 20% हो या उसके माल के 20%, जो भी आपका रूल एक बना हुआ है, जो उस रूल के ऊपर बहस करना अलग, उस रूल के ऊपर अमल दरामद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कहीं नहीं हो रहा है, बताएं, वायलेशन हो रही है तो कार्रवाई होगी डिपार्टमेंट के लोगों के ऊपर, उसमें 2 राय नहीं है। नहीं, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर उसके ऊपर वायलेशन हो रही है, कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, अगर कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके ऊपर ठीक से कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी तो दूसरे मरहले में है। मुझे नहीं पता कि मेरे जो राइट क्या है, मतलब मुझे मेरे गांव को कितने परसेंटेज शेयर आना है, गांव के मेंबर होने के नाते से, गांव का कम्युनिटी देखें, फर्द होने के नाते आज भी अगर आपके पास किसी के पास कोई लीज गए हुए हैं आपके पहाड़ का, तो उसमें आपकी कम्युनिटी इन्वॉल्व होंगे। बगैर कम्युनिटी के साइन के लीज ही नहीं दे रहे हैं, लीज आउट ही नहीं हो पा रहा। हाँ, आपसे नहीं पूछा हो, जिनसे नहीं पूछा हो, और भी लोग आपके बैठे हैं, अब वो गलती उस कानून की नहीं है, ठीक है, वो उस गाँव के लोगों की है, उस कम्युनिटी की है। उसको चाहिए कि किसी खानकाह में, किसी मस्जिद में, किसी बारगाह में
तमाम आवाम उन्नास को बुला के समझाएं आज ये एग्रीमेंट हमारे साथ होगी, उसके ऊपर हमारा क्या शेयर होना चाहिए। ये नहीं 3 बंदे बैठ के आप एग्रीमेंट करके दे दें। तो गवर्नमेंट के पास कोई सरमाया नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई सरमाया नहीं है, इसीलिए सरमायाकार आ रहे हैं, ठीक है, डोनर इन्वेस्टर इसीलिए आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट कर सकती है ना, जो पॉलिसी है गवर्नमेंट भाई गवर्नमेंट का काम ये है कि वो आपको पॉलिसी बना के देना, उसमें पॉलिसी को पब्लिक कैसे करना है सर? आप बात सुनो ना, उसमें पब्लिक का शेयर डिफाइन वो घर घर जाके तो नहीं कर सकता ना, आपको शेयर डिफाइन है। आपने कभी उस रूल को ला के पढ़ा है कम्युनिटी के किसी बंदे ने कि मेरा शेयर क्या है? आप 1 लाख रुपए में राजी है सर, जितना मैंने 1 लाख रुपए में राजी है ना, जितना मैंने पढ़ा है, और कम्युनिटी को वहाँ से निकलने वाले माल का 20% जो है ना उसके हकदार कम्युनिटी है। बिल्कुल। लेकिन इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन अगर एक सरमायादार के खिलाफ एक गरीब आवाम को कानून आपने दिए बगैर इस चीज के ऊपर इंश्योर करना गवर्नमेंट की रियासत की जिम्मेदारी इसके ऊपर आप देखें ना, ये जाफर साहब भी थे, ये इससे पहले वाला डीसी अपना अब्बास साहब, ठीक है, वहाँ यहाँ अभी हम सली को ही साथ लेते हैं, हमारे सामने वही सली है, उस पे कमेटी बनती है, वहाँ बैरियर लगता है, जो प्रोडक्शन वहाँ से निकलते हैं वो वेरिफिकेशन के उसमें विलेज का मेंबर शेयर होता है, बैठा हुआ होता है, बैठा हुआ होता है, वो बैरियर पे वो भी बैठा हुआ होता है, और जितनी क्वांटिटी में जाते हैं वो लिख रहा उस क्वांटिटी को आप नोट करके आपके जो वो उसके को वहाँ टन के हिसाब से जो जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जिस पोस्ट चेकिंग करने वाला उसमें उसी कम्युनिटी के इन्वॉल्व वाली जो पार्टी है, इंतजामिया का भी बंदा होता है और विलेज का भी होता है। अब मैं ये बता दूं, नहीं आप बात सुनो ना, अमल दरामद इसलिए नहीं हो रहा है, कम्युनिटी सोया हुआ है। गवर्नमेंट का काम तो ये है कि वो नहीं, कम्युनिटी के अंदर भी कुछ लोग मुकाव करते हैं ना, ये एक हिसाब। अब आपके कम्युनिटी ने उसको कैश करना है, आप कैश नहीं कर सका तो वो गवर्नमेंट पे क्यों डालते? मैं अपनी नाअहली जो है वो गवर्नमेंट के सर क्यों थोपते? गवर्नमेंट का उस वक्त वो जिम्मेदार है अगर उसने पॉलिसी नहीं बनाया, आपके शेयर डिफाइन नहीं किया। इन चीज़ों को देखें, आप प्रेस वालों का भी काम ये है कि आप खुद उस रूल को जरा पढ़े ना। चेयरमैन साहब, सवाल ये है, अगर लेट्स सपोज आज पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में जी क्या पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में होती तो भी पीपल्स पार्टी की ही होता कि आवाम हमारा यही मौका, हम जब हम जो फैक्ट बात करते हैं, उसूलों पे सियासत करते हैं हमारी पार्टी, ठीक है ना जी, हम वही ये बात उस वक्त भी करते अगर हम अपोजिशन, हम हुकूमत में होकर भी यही बात करें। अभी देखें, आप खुद माशाल्लाह से प्रेस वाले हैं, कभी आपने इस रूल को पढ़ा है कि आपकी कम्युनिटी का क्या शेयर है? मैं पहले आपने पढ़ा है तो आप अपने लोगों को मोटिवेट करें ना, ये मोटिवेशन आप कर दें पढ़े लिखे लोगों को, ले हमारा ये शेयर है, हमें नहीं मिल रहा है। यही रोना रो रहे हैं कि हमें उन अब आप सारी चीजें जो पता कि आपने गवर्नमेंट की साइड पे वो देखो ना, पब्लिक नहीं किया, हम ये कह रहे हैं। नहीं, पब्लिक एक रूल बन के कब से इम्प्लीमेंट है, ये जो है ना, ये आज बनी नहीं है, ये जो मिनरल्स रूल जो बनी है ना, ये 2012 में बनी है, ठीक है, 2012 से अब तक अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, तो उसकी जिम्मेदारी तो किसी और की तो नहीं है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और मेरी है, इसको आपने ठीक करना है। बहुत शुक्रिया सर। चलिए जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।